Hey everyone, hope you all are doing well. I'm Jyotsna. I'm here with a new video, Coal and Petroleum, chapter number 5, class 8 science. In this video, we will learn what are natural resources. Not just only that, we will also learn about what are exhaustible and inexhaustible resources. So, what are these? Let's see. First of all, the question arises, what are natural resources? The resources which are exist in nature and useful to mankind, वो resources जो नेचर में एग्जिस्ट होती हैं और मैनकाइंड के लिए बहुत यूजफुल होती हैं, दैट आर कॉल्ड natural resources. As the name itself suggesting natural, that means these resources are exist in nature. We get these substances from nature. Uh, so these substances we cannot create them artificially. हम उन्हें artificially create नहीं कर सकते. So even we want to create them, we can't. If we want to create them, we can't. They tend to form in nature by themselves and they are very useful to mankind. वो नेचर में अपने आप ही क्रिएट होते हैं, अपने आप ही फॉर्म होते हैं और उन्हें हम क्रिएट नहीं कर सकते और वो मैनकाइंड के लिए बहुत यूजफुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल air, water, soil, coal, petroleum, etc. Now take the example of air. Can we create air? Of course not. And it is very useful for us. We breathe in. What we breathe air, and it is present everywhere, and it is always very important for our survival. Same as water. Water is equally important for us for our survival. We cannot create water. Soil grow and develop in soil, and many creatures live in soil. That is very important, but we cannot create the soil. If we want to create, even if we want to create, but we cannot create soil. Same as coal, petroleum, these are natural resources, but we cannot create them. Now see, resources can be divided into two categories, natural resources and man-made resources. Fine. See, natural resources, the resources which are obtained from nature are called नेचुरल रिसोर्सेस. जो रिसोर्सेज हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं हम उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जांपल है सनलाइट, एयर, वाटर. बिकॉज वी कैन नॉट create them, that's why it is called natural resources. Can we create sunlight? Can we create air? Can we create water? Of course not. That's why these are natural resources. Next, man-made resources. The resources which are made by man are called man-made resources. Example, glass, plastic, cement, table, etc. जो resources मैन के द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं man-made resources. जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, सीमेंट, टेबल, एक्सेट्रा. टेबल मैन-मेड है. ऑफ कोर्स जो इसका मटेरियल है जिससे टेबल बनेगा वो नेचुरल हो सकता है. इट मे बी नेचुरल. अगर वो वुड का है तो वी टेक वुड फ्रॉम द नेचर, बट जो टेबल है वो मैन मेड है. दैट्स व्हाई इट इज अ मैन मेड रिसोर्स. फाइन. नाउ सी, natural resources can be uh, can be broadly classified into two kinds: inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. So see, inexhaustible natural resources, इन्हें हम renewable resources भी कहते हैं. Why we call it renewable resources? Understand it. These resources are present in unlimited quantity and are not likely to be exhausted by human activities. जो ये inexhaustible natural resources हैं, ये nature में unlimited quantity में है. That means these are present in plenty amount. तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं कि जितना more and more we can use it, but it will not finish.
these are not likely to be exhausted. ये फिनिश नहीं होंगी ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा. एग्जाम्पल है सनलाइट एंड एयर. टेक सनलाइट, जैसे कि हम सनलाइट को कंज्यूम हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, हमने सनलाइट ली, हम सनलाइट में बैठ गए, हमने अपने कपड़े धूप में सुखा दिए, बहुत सारा यूज कर लिया हमने सनलाइट का. क्या सन हमसे कहता है कि अब मैं और सनलाइट आपको नहीं दूंगा, इट इज फिनिश, इट इज एग्जॉस्टेड? नहीं कहता ना. तो हम जितना भी यूज कर ले, मोर एंड मोर वी कैन यूज सनलाइट, बट इट विल नेवर फिनिश. सेम एज एयर, we breathe in air, we utilize air in many ways. तो क्या ये एयर खत्म हो जाती है? नहीं होती ना. क्योंकि जो एयर है वो भी प्लेंटी ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो ये कभी फिनिश नहीं होती. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Inexhaustible natural resources, clear? Now see, exhaustible natural resources, it is just opposite of inexhaustible natural resources. The amount of these resources in nature is limited. जो exhaustible resources हैं उनका जो amount है वो नेचर में limited है. They can be exhausted by human activities. उन्हें human activities से exhaust मतलब कि finish किया जा सकता है, हो जाती हैं वो. Example है forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. As see, फॉरेस्ट को जैसे हम बहुत यूज कर रहे हैं कि हमें घर बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, तो वी व्हाट वी डू, वी कट द फॉरेस्ट, तो इट कैन बी फिनिश्ड. सेम एज वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम, अगर हम कोल को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी फिनिश हो जाएगा. पेट्रोल को आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को कहते हुए, मैनी पीपल सेज कि पेट्रोल को कम यूज करो, कि वो अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा. जो आने वाली कमिंग जनरेशन है वो उन्हें वो पेट्रोल नहीं मिलेगा. तो समटाइम्स यू हैव सीन इन द एडवर्टाइजमेंट्स कि आप रेड लाइट पर खड़े हैं और आप क्या करते हैं, उसको अपनी गाड़ी को स्टार्ट ही रखते हैं. तो उसको उसमें एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है, व्हेन यू आर स्टैंडिंग विद योर व्हीकल्स, कि आप अपनी गाड़ी में या अपने टू व्हीलर्स पे खड़े हैं, तो आप उसको, अगर आप वहां पर स्टॉप है, देर इज रेड लाइट, तो आप अपने व्हीकल को स्टॉप कर दें, जिससे कि आप पेट्रोल को ज्यादा मतलब कि सेव कर सकेंगे. तो सेम एज मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, एक्सेट्रा, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है. इसे आप रिन्यू नहीं कर सकते. एक बार आपने कोल को यूज कर लिया, वो बर्न हो गया, तो आप दोबारा से कोल, वो वाला कोल यूज नहीं कर सकते. और इनको क्रिएट करने में भी, जो ये बनने में जो पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस है, इनको जब ये बनते हैं, बनते तो नेचर से ही है, नेचुरल है, बट क्या होता है, इनको बनने में बहुत सारे मिलियन बिलियन ईयर्स लग जाते हैं इसको क्रिएट होने में. और यूज करें अगर हम इन्हें, तो क्या होता है, यूज करने में कुछ ही ईयर्स में ही खत्म हो जाते हैं. अगर मान लो हमने पेट्रोल यूज किया, थोड़े टाइम में खत्म हो जाता है, लेकिन इसको क्रिएट होने में काफी टाइम लगता है. दैट्स व्हाई इट इज आवर ड्यूटी टू यूज देम वाइजली, राइट? Let's understand this with the activity. It is given in your NCERT book, activity 5.2. There are, suppose there are 21 students in a class. We categorize in three groups, and each group there are 7 students. ठीक है, 7 students हैं, 7 here, 7 here, 7 here. And further we sub categorize, सब group, उसमें सब ग्रुप किया, उसमें 3 जनरेशन की, 1 3 जनरेशन बनाई इसमें, ए, बी एंड सी. और ए ग्रुप में हमने रखे, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन 1, दिस इज जनरेशन 2 एंड दिस इज जनरेशन 3. इसमें स्टूडेंट थे 1 हेयर, 2 एंड हेयर 4. क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है, कि पहले आपने देखा होगा पॉपुलेशन कितनी कम थी, उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, और अब आगे भी इंक्रीज होती रहेगी. तो ठीक है, तो ऐसे ही हमने सब कैटेगराइज किया. ऐसी सेम है, यहाँ पर भी 7 स्टूडेंट है, और उसको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट ग्रुप में
जो ये है ये जनरेशन 1 है, दिस इज जनरेशन 2, दिस इज जनरेशन 3। और जनरेशन 1 में कितने स्टूडेंट हैं? 1, here 2 and here 4, that means 7 student total। same here, 3 subgroups हैं, A B C। A ग्रुप में 1 स्टूडेंट, B ग्रुप में 2 स्टूडेंट एंड C ग्रुप में 4 स्टूडेंट। 7 हो गए। दिस इज जनरेशन 3, दिस इज जनरेशन 2 एंड दिस इज जनरेशन 1। अब क्या किया हमने, कंटेनर लिया जिसमें चॉकलेट्स है, ठीक है। चॉकलेट्स है, पहले हमने यहाँ पर दी चॉकलेट्स जनरेशन 1 के। जो जनरेशन 1 है उसमें कितने स्टूडेंट हैं? 1। तो हमने जब इसके आगे चॉकलेट्स रखी, कंटेनर रखा, इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, तो क्या हुआ? इसने कंज्यूम कर ली। हमने इसके आगे कंटेनर रखा, जितनी भी चॉकलेट्स कंज्यूम कर लो, तो इसने कर ली अराउंड 1/4, मान लो 25% इसने कंज्यूम कर ली, ठीक है। नाउ 3/4 इसमें बचा, 3/4 इज लेफ्ट। नाउ अब वही कंटेनर जनरेशन 2 के स्टूडेंट्स के पास आया, जिसमें कितने स्टूडेंट्स थे? 2। अब इनको दी गई, अब इन्होंने क्या किया? 50%, मतलब कि ये समझ लो इसमें से 3/4 में से जो बचा था उसमें से, यानी कि अब इस कंटेनर का जितना था उसका मोर देन हाफ इन्होंने कंज्यूम कर लिया, जनरेशन 2 के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने। मान लो अब ये खा गए मोर देन 4। अब यहाँ पे इस कंटेनर में बचा ओनली 3/4 इन्हें मिला था, अब इन्होंने भी इसमें से कंज्यूम कर लिया। अब ओनली 1/4 बचा, वो जो है वो थर्ड जनरेशन के जो स्टूडेंट हैं उनको मिला, और वहाँ पे 4 स्टूडेंट है, ओनली दे गेट 1/4। 1/4 उन्हें चॉकलेट्स मिली कंटेनर में, तो क्या किया उन्होंने? कंज्यूम करने के लिए, वहां पर 4 स्टूडेंट है, उनको खाने के लिए चॉकलेट जो है वो काफी कम मिलेंगी, काफी कम अमाउंट में, वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होगी। सेम एज अगर हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे और उनको सेव नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आने वाली जनरेशन के लिए वो नहीं बचेंगी, वो खत्म हो जाएंगी। तो जो कमिंग जनरेशन है उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज आवर ड्यूटी टू यूज दीज रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, विद वेरी वेरी केयर। सो अगर हम इसको सम अप करें कि हमने अब तक क्या देखा, क्या सीखा, तो सी व्हाट वी हैव लर्न। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज ओवर एंड अगेन, हम इन्हें बार बार यूज कर सकते हैं, मोर एंड मोर। अनलिमिटेड स्टॉक, जो एग्जांपल है इसका इनएग्जॉस्टेबल का, सनलाइट एंड एयर, हम इन्हें अनलिमिटेड अमाउंट में यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट मोर एंड मोर, बट इट विल नेवर फिनिश। कोल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, बिकॉज दे वी कैन यूज इट मोर एंड मोर एंड इट विल नेवर एग्जॉस्ट। Example are sunlight and air. Next is exhaustible natural resources. They can be used, they cannot be used over and again। इनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, मतलब एक बार यूज कर लिया तो हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। They are present in nature in limited stock। दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इसे हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर्म, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, बट इन अ स्मॉल टाइम कैन बी यूटिलाइज, और एक स्मॉल टाइम में ये यूटिलाइज हो जाते हैं। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जैसे कि पेट्रोल है, हम उसको इसको बनने में तो बिलियन एंड मिलियन ईयर्स लगते हैं, बट क्या होता है जब हम इसे कंज्यूम करते हैं, हमने स्कूटर या जो भी हमारा टू व्हीलर है या हमारे पास जो फोर व्हीलर है, हमने उसको स्टार्ट किया, हम यहाँ से वहां तक पेट्रोल कंज्यूम हो जाएगा। वो उसको बनने में तो काफी टाइम लगा, बिलियंस एंड मिलियन ईयर्स, बट क्या हुआ? उसको यूटिलाइज करने में फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स लगे और वो कंज्यूम हो गया। तो दैट्स व्हाई इट इज आवर ड्यूटी टू use them very carefully. So we have covered natural resources, exhaustible and inexhaustible resources. In further video, we will cover more topics of this chapter. If you have any queries, please write in a comment box. I will definitely answer your all questions. Uh,
I'll be meet you soon in next video. Till then, bye bye. Take care.